बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हमने करैक्टरिस्टिक्स देखने हैं जंक्शन डायोड के। पहले हमने लास्ट टाइम रिवर्स बायस्ड एंड फॉरवर्ड बायसिंग देखी कि कैसे फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग जंक्शन डायोड की पॉसिबल है। करैक्टरिस्टिक्स, व्हाट इज़ करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ए जंक्शन डायोड? इट इज़ जस्ट अ कर्व we plot between the biasing voltage and the resulting current. So such curve is known as characteristic curve, and this shows the characteristics of a PN junction diode. Now first of all we discuss the forward characteristics. फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक्स में अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं फॉर फॉरवर्ड बाइसिंग वोल्टेज वी एफ एंड द फॉरवर्ड करंट आई एफ, ठीक है। आई एफ मीन्स फॉरवर्ड एंड वी एफ वोल्टेज एंड आई एफ करंट. So this graph is obtained for forward characteristics of a PN junction diode. अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं रिवर्स करंट और रिवर्स वोल्टेज दैट इज़ VR and IR, then that curve obtained is called the reverse characteristic curve. Now for the circuit diagram is shown in this figure. This is voltmeter, this is milliammeter, and this is PN junction diode. This arrow is P type and this line is N type side shows, and this is the battery, heavy battery applied, and this is resistance, this is a rheostat. Now this shows the potential dividing arrangement. This variable resistance and this battery shows the potential dividing arrangement. We also called it potential dividing arrangement. जहाँ ये बैटरी लगी हो और इस तरह से आपको रेजिस्टेंस, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस शो हो रही है और ये हम लगाएंगे तो हम इसको क्या कहेंगे? वह पोटेंशियल डिवाइडिंग अरेंजमेंट. अब ये हमने सर्किट यू हैव आल्सो स्टडीड in your practical exam also. When you did the practical of PN junction diode, you did forward characteristics and reverse characteristics. So you use the voltmeter and milliammeter in the practical, and you noted the reading of both the voltmeter and milliammeter and this PN junction diode for forward and reverse characteristics. Now first of all, forward biasing, we discuss the forward characteristics for forward biasing voltage that is applied to a PN junction diode from potential dividing arrangement. ठीक है, ये हमारे पास यहाँ से हम इसको वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ये पोटेंशियल डिवाइडिंग अरेंजमेंट है. फॉरवर्ड वोल्टेज यहाँ से हमने इसको दी है, ठीक है. हम इंक्रीज़ करेंगे. यू यूज़ द नॉब टू इंक्रीज़ द वोल्टेज इन द प्रैक्टिकल apparatus. So we increase this voltage in regular step by using knob. The forward biasing voltage VF is measured by voltmeter connected across the junction diode. A milliammeter is connected in the circuit. फॉरवर्ड वोल्टेज कहाँ से कैलकुलेट करेंगे? जो यहाँ हम वेरी कर रहे हैं वो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, और जो उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली करंट फ्लो होगी, करंट चेंज होगी, वो हम इस मिली एमीटर से देखेंगे. So milliammeter is connected in the circuit to note the forward current IF for each value of forward voltage. In case of junction diode, forward current is a very sensitive parameter for of potential, positive potential applied to the P type side. Therefore a variable resistance R is used to have fine control in the current. टिपिकल करेक्टरिस्टिक जो हैं वो हमारे पास फिगर हम देखते हैं, उसमें शो हैं उसके करेक्टरिस्टिक्स. सो दिस इज़ द वेरिएबल रेजिस्टेंस अप्लाइड R and to control the current in the circuit. This is the graph, student. We applied this graph in this positive side, and this is the negative side. Negative positive x-axis, negative x-axis, this is the positive y-axis, and this is negative y-axis. We plot forward characteristics in positive side
and reverse characteristics at negative side. So for positive x-axis we plot Vf, that is forward voltage, and If, forward current. Forward current is milliampere and reverse current in microampere. So these are the graph values we plot for forward characteristics, that is 0.2, 0.4, 0.6. आपने जब प्रैक्टिकल किया था तब आपने उसमें वैल्यू यूज़ की थी फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक्स के लिए और रिवर्स करेक्टरिस्टिक्स के लिए, ठीक है। तो वो हम यहाँ इसको प्लॉट कर देंगे और ये हमारे पास आ जाएगा ग्राफ इस फॉर्म में फॉर फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अब देखें कि जब तक 0.7 वोल्ट नहीं आ जाता तब तक जो है उसके अंदर 0.7 फॉर सिलिकॉन एंड 0.3 वोल्ट फॉर जर्मेनियम। सो दैट इज़ द नी वोल्टेज, दैट इज़ कॉल्ड द नी वोल्टेज। जब तक ये वोल्टेज अटेन नहीं हो जाती तब तक जो है करंट फ्लो होना नहीं शुरू होती, ठीक है। हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं, लेकिन करंट इंक्रीज़ नहीं हो रही। जैसे ही 0.7 वोल्ट आ जाते हैं तो करंट जो है वो स्टार्ट हो जाती है इंक्रीज़ होना, ठीक है। दिस इज़ फॉर फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। So it can be seen from the curve that the forward current IF is very small until the forward voltage VF exceed the barrier potential of 0.7 volt for silicon, ठीक है। जब तक 0.7 वोल्ट तक नहीं आ जाती, वोल्टेज हम अटेन नहीं कर लेते, तब तक हम बैरियर पोटेंशियल को ओवरकम नहीं कर सकते। फिर उसके बाद हम इंक्रीज़ करेंगे उसको फॉरवर्ड करंट को वोल्टेज को, तो करंट इंक्रीज़ होगी इन स्टेप्स। वोल्टेज जो है वो हम उसको क्या कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड 0.7 वोल्ट, दैट इज़ द नी वोल्टेज। और नी वोल्टेज जो है वो 0.7 है सिलिकॉन के लिए और जर्मेनियम के लिए 0.3 है। सो दिस इज़ द एक्सपोनेंशियल, दिस कैरेक्टरिस्टिक कर्व फॉलो द एक्सपोनेंशियल लॉ। एंड Vf जो है अगर हम इंक्रीज़ करेंगे नी वोल्टेज से तो फिर हम आहिस्ता आहिस्ता से जो है उसकी करंट जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी, इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी और बैरियर पोटेंशियल जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी और ज़ीरो हो जाएगी आलमोस्ट, ठीक है। और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो है उसमें से फ़्लो होना शुरू हो जाएंगे जंक्शन में से। और बियॉन्ड द नी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक द बैरियर पोटेंशियल हैज़ बीन कम्प्लीटली ओवरकम, द IF इंक्रीजेज ऑलमोस्ट लीनियरली विद द इंक्रीज इन Vf। अगर हम इससे बियॉन्ड चले जाएंगे नी वोल्टेज से तो फिर लीनियरली करंट जो है इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज़ करेंगे तो करंट भी लीनियरली इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी।